Hi everyone, a very warm welcome to all of you to my YouTube channel, The Glimmer of Hope. Today I am with you to have a short discussion on a topic that is related to Bihar, and that topic is of utmost importance. Today, the title is much more clear, it's crystal clear that human-made wetlands, Nagi and Nakti recognized under Ramsar Convention. We know very well that Ramsar Convention is related to wetlands, and that wetlands are very important for our ecosystem. And Bihar is playing a vital role, a pivotal role in this Ramsar sites. And recently, what happened that Nagi and Nakti reservoir of wetland that is recognized and that is of international importance. So this is very important related to Bihar and for international organization that is COP. Today, first of all, I would like to make you all aware, first of all, at what Ramsar is, how the name Ramsar was coined, and when the treaty, it was signed. So starting from the very name that what Ramsar is. So Ramsar is a city of Iran. We know very well that it's an Iranian city. When we talk about the name, that how it coined. So when the International Treaty of the Conservation and the Sustainable Use of Wetlands was signed in 1971, जब 1971 में जब इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स जब साइन किया गया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस नेम वाज कॉइंड रामसर साइट. So the next one is what the aim, what the objective of this convention is. And this is very important because implementation of the objective is very important on the ground level. So the aim of this very convention, this very Ramsar Sites Convention is to conserve, what to conserve and wisely or judiciously use of wetlands, whatever the wetlands we have. So using that wetlands judiciously and for sustainable use of its resources, and whatever the resources are there, and that resources must be used judiciously. This is the sole aim of this convention. Now, heading toward the topic that the inclusion of the two world sanctuaries in the Ramsar Convention has taken the total number of Ramsar sites in India 82. जो इंक्लूजन हुआ है दो वर्ड्स सैंक्चुरीज का रामसर साइट्स के कन्वेंशन में, उससे क्या हुआ कि इंडिया जो 80वां स्थान पे था. टोटल जो उनका जो रामसर साइट्स था इंडिया में वो 80 था, तो वो जो बढ़कर हो गया क्या 82 हो गया. एंड इसके चलते क्या हुआ कि इंडिया जो है ना वो बराबरी कर दिया है चाइना का. जैसे ही बिहार का जो नागी एंड नक्टी वर्ल्ड सैंक्चुरीज है वो एडेड हुआ रामसर साइट्स के लिस्ट में. Both sites were declared as wetlands of international importance on the occasion of World Environment Day on June 5. June 5 we celebrate this day as World Environment Day, और इसी के ऑस्पिशियस ओकेजन पर, इसी के शुभ अवसर पे बिहार के जो ये दो नागी एंड नक्टी सैंक्चुरीज है उसको ऐड किया गया, एंड दैट इज ऑफ दैट वेटलैंड्स आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. This is Jamui, we know very well in the map of Bihar, and this is now gaining importance, international importance amid an ongoing heat wave and drying water bodies across India. हम लोगों को पता है कि गर्मी जो है स्कॉर्चिंग हिट आजकल चल रहा है. इसके बावजूद क्या है कि देयर इज सम गुड न्यूज फ्रॉम बिहार. बिहार से कुछ खबर आया जो दैट इज कंसोलिंग, और वो जो न्यूज़ है दैट इज नागी एंड नक्टी बर्ड सैंक्चुरीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड. उसको डिग्निफाइड किया गया, उसको डेजिग्नेटेड किया गया है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में अंडर रामसर कन्वेंशन. रामसर कन्वेंशन के अंदर जो बिहार का जो जमुई डिस्ट्रिक्ट का जो नागी एंड नक्टी सैंक्चुरीज है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है. किस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है? तो वेटलैंड्स के तौर पे जो इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पेरेटिव है, किसके अंडर? तो रामसर कन्वेंशन के अंडर. अगर ये सारी सैंक्चुरीज की बात की जाए तो आर बिल्ड ऑन ह्यूमन मेड वेटलैंड्स. ये जो सैंक्चुरीज है वो ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हैं एंड प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. और ये प्रोवाइड करता है नेचुरल हैबिटेट किसके लिए? तो फॉर वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, स्पेशली फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स. ये जो सैंक्चुरीज है, ये जो रिजर्वर है वो पार्टिकुलरली किसके लिए है? फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स के लिए है. बोथ दीज वेटलैंड्स आर डीम्ड एज, ये दोनों जो वेटलैंड्स है इसको डीम्ड किया जाता है, माना जाता है प्रोटेक्टेड एरियाज सिचुएटेड इन बिहार जमुई डिस्ट्रिक्ट. जो सिचुएटेड कहाँ है? तो बिहार की जमुई डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. विद देयर इंक्लूजन, अब इन दोनों जो साइट्स हैं इसके इंक्लूजन के बाद क्या हुआ? जो रामसर कन्वेंशन में इंक्लूजन के बाद द टोटल नंबर ऑफ सच वेटलैंड्स इन इंडिया हैज राइजन 22. इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स है वो कहाँ चला पहुँच गया? 82 पहुँच गया है. एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, और इस बात को ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कन्वर लेक है बेगूसराय का, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में वॉज डेजिग्नेटेड एज बिहार फर्स्ट रामसर साइट इन 2020. जो 2020 में रामसर की जो पहली साइट्स जो बिहार के बेगूसराय के डिस्ट्रिक्ट की थी वो कौन था? कन्वर लेक. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर वन डे एग्जाम्स.
नागी एंड नकटी वेटलैंड्स इन बिहार जमुई डिस्ट्रिक्ट। अब जो नागी एंड नकटी वेटलैंड्स हैं बिहार की जमुई डिस्ट्रिक्ट में, वो नेस्टल्ड विद इन है, वो कहाँ है, सेटल्ड है, तो झाझा फॉरेस्ट रेंज में। और मैन मेड रिजर्वर, ये जो दोनों रिजर्वर है, जो सेंचुरीज है, वो मैन मेड रिजर्वर है, जो सराउंडेड बाई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड हिल्स, जो सराउंडेड बाई है, जो घिरा हुआ है डेसिडियस फॉरेस्ट से और हिल्स से। डेवलप्ड प्राइमरली फॉर इरिगेशन, इसका जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो प्राइमरली किससे रिलेटेड था, इरिगेशन से रिलेटेड था, सिंचाई के लिए बनाया गया था। दे होस्ट डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, लेकिन इसमें कितना फ्लोरा एंड फोना बहुत सारा है, इंक्लूडिंग ओवर 150 वर्ड्स स्पीसीज, जिसमें कम से कम 150 स्पीसीज हैं वर्ड्स के, मैमल्स हैं, फिश हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं एंड एम्फीबियंस हैं। सो ये दीज आर द हैबिटेट ऑफ मच मोर वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वर्ड्स, फ्लोरा एंड फोना। So this is also imperative for this reservoir, this sanctuaries. इन टर्म्स ऑफ अगर साइज के रिस्पेक्ट में देखा जाए, साइज के एस्पेक्ट में देखा जाए, तो जो नागी एंड नकटी वर्ड सेंचुरीज है वो स्प्रेड करता है अक्रॉस 791, 791 एंड 333 हेक्टेयर्स रिस्पेक्टिवली। एज पर द एशियाटिक वाटर वर्ड सेंसस, अगर AWC के तहत देखा जाए, 2023 का जो इनका रिकॉर्ड आया है उसके तहत अगर देखा जाए, तो जो नकटी वर्ड सेंचुरीज है, जो वेटलैंड है, विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स रिपोर्टेड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ड्स रिपोर्ट किए गए हैं, जिसका काउंटिंग अगर देखा जाए तो 7,844 वर्ड्स यहाँ पे काउंटेड किए गए हैं, फॉलोड बाई नागी वर्ड सेंचुरी विथ 6,938 वर्ड्स। So now you can understand how important is this for the different type of habitat. इंडिया एंड चाइना रैंक थर्ड ग्लोबली फॉर रामसर साइट्स। अब ये जब इंडिया का 82 वेटलैंड्स हो गया है, तो इंडिया और चाइना दोनों इक्वल नंबर हो गए हैं वेटलैंड्स का, दोनों का। द यूनाइटेड किंगडम लीड्स विथ 175, यूनाइटेड किंगडम में अभी भी वो 175 वेटलैंड्स हैं, जबकि मैक्सिको जो दूसरा नंबर पर है उसके पास 144 वेटलैंड्स हैं। इंडियाज रामसर साइट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 to 82 इन द लास्ट डिकेड। अगर देखा जाए तो इंडिया जो लास्ट डिकेड है, पिछले दशक में इंडिया का जो रामसर साइट्स का जो नंबर है वो सिर्फ 26 से 82 हुआ था, यानी कि सिर्फ 56 वेटलैंड्स का नाम ऐड हुआ था। वहीं अगर पिछले 3 साल में देखा जाए तो 40 रामसर साइट्स इंडिया के लिए एडेड हुए हैं, वो रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। एवरी 3 ईयर, प्रत्येक तीसरा वर्ष क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मीट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, है ना, जो COP का मीटिंग होता है, जो COP का मीटिंग होता है, तो प्रत्येक 3 साल के बाद इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो मीट करते हैं, मिलते हैं, ताकि वो पॉलिसी बना सकें, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द कन्वेंशन, पॉलिसी जो भी पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है इस कन्वेंशन को, वो मीट करते हैं, विच एडॉप्ट्स डिसीजंस, जो क्या करते हैं, डिसीजंस पे पहुंचते हैं, एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। एंड दैट डिसीजन इज फॉर व्हाट, साइट डेजिग्नेशन, कि कौन से साइट्स को रामसर कन्वेंशन के अंदर उसको डेजिग्नेट किया जाए, है ना। फिर रिजोल्यूशंस, क्या क्या रिजोल्यूशंस पास किए जाएँ, क्या किसको रिकमेंड करना है, क्या क्या रिकमेंड करना है। सो दीज आर द बेंचमार्क और स्टैंडर्ड फॉर व्हाट द मेंबर्स, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द COP मीट एवरी 3 ईयर्स टू एडमिनिस्टर द वर्क ऑफ द कन्वेंशन। और क्या करना है, क्या, ताकि वो एडमिनिस्टर कर सके, क्या क्या काम हो रहे हैं कन्वेंशन का, क्या क्या तरीके हैं जिससे वो इम्प्रूव कर सकें द पार्टीज को, वो इम्प्लीमेंट कर सके ऑब्जेक्टिव्स को, ताकि वो जिनका जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो एम है, उसको ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसी के लिए जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एवरी 3 ईयर्स वो मीट करते हैं। इन 2022 COP14 वाज को हेल्ड इन वुहान, चाइना एंड जेनेवा, स्विट्जरलैंड। को हेल्ड मीन्स दोनों मिलकर उसको हेल्ड किया था, इस मीटिंग को, वुहान चाइना में और जेनेवा का स्विट्जरलैंड में। द 15th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, यानी कि जो COP15 है वो 2 जुलाई 2025 में होने वाला है, जो कहाँ होगा, विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल एंड आई ट्राइड माई best to make you all aware about the ins and outs of the Ramsar sites, Ramsar Convention, and particularly for Bihar it is a matter of glory that बिहार जो है एक important role play कर रहा है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। So very thankful to all कि all the people of the citizen of that various state कि they are doing well, और बिहार का नाम कहीं ना कहीं आगे आ रहा है। वी आर गेनिंग पब्लिसिटी, द पीपल ऑफ बिहार, द स्टेट बिहार इज गेटिंग पब्लिसिटी, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दे आर गेनिंग। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस आर्टिकल एंड आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।